Hello students, today I will be concluding the chapter light. I hope in my last two videos I've been able to understand you the concept of light. So now today we'll be dealing with the spherical mirrors. So I've taught you what a plane mirror is. ठीक है, plane mirror क्या होता है? It is plane. The light does not pass through that. ठीक है, what it does is the light उसके जब प्लेन मिरर पे गिरती है then it reflects back, वो रिफ्लेक्ट होती है. ठीक है, अभी जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं दे आर लाइक प्लेन, अनलाइक प्लेन मिरर्स दे आर नॉट प्लेन, दे आर कर्व्ड मिरर्स. कौन से मिरर्स होते हैं? उनमें स्लाइड से कर्व होता है. प्लेन मिरर इज लाइक प्लेन, इनमें थोड़ा सा कर्व होता है. सो द कर्व्ड मिरर्स आर कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर. अब ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर. अब ये कॉन्वेक्स क्या होता है और कॉन्केव क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल. कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर विच इज बल्जिंग आउट, जिसका बल्जिंग आउट सरफेस होता है. लाइक आई विल टेल यू, सी दिस इज अ स्पून. व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्पून. एवरी यू विल गेट इट इन एवरी हाउस. Now this part of the spoon, अगर हम स्पून को उल्टा करें तो this part is bulging out, बाहर की तरफ हो रहा है. See, it's not plain, it's little curved, और जो curve है वो बाहर की तरफ है. So when this curve is towards the outside, that is bulging out, that mirror is called as convex mirror. अभी हम इसको ऐसे करते हैं. So now the type of mirrors which are bulging in, अंदर की तरफ, sorry not bulging in, which are bent inwards, अंदर की तरफ bent है. ठीक है, उन मिरर्स को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर्स. सो नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट थिंग व्हाट कम्स इज why convex and concave mirrors. Like I told you, there are two types of spherical mirrors. One is convex, one is concave. So why they are called spherical mirrors? और कुछ नाम क्यों नहीं दिया? Spherical mirrors ही क्यों बोला हमने? They are called spherical mirrors. You please concentrate on this diagram. See, this is a hollow sphere of rubber. Okay. Now, when we cut it into two parts, बीच से हम इसको अगर हम कट करते हैं, so what we get is these two portions. ठीक है, आप विजुअलाइज भी कर सकते हो. We'll get these two parts. Now, अगर हम इसको ध्यान से देखें, the bulging out part, that is called as convex, and the bent in portion, this is bulging out, convex mirror. This bent in concave. Same with the case of this. So that's why these two mirrors, the convex mirror, that is the bulging out, the bent in, that is the concave. So these two mirrors are called as spherical mirrors. Now, next comes is concave mirrors are converging mirrors. concave mirrors को, concave mirror क्या बताया था मैंने आपको? जिन spherical mirrors का bent in surface होता है अंदर की तरफ, curved surface bent in, ठीक है, उसको हम concave mirror बोलते हैं. अब बोलते हैं इनको हम कन्वर्जिंग मिरर क्या क्यों बोलते हैं? सी, अभी आप इसको ध्यान से देखना. दिस इज बेंट इन सरफेस ऑफ द मिरर, कर्व्ड स्फेरिकल मिरर, बट इट इज बेंट इन, सो इट इज व्हिच मिरर? इट इज कॉन्केव मिरर. ओके, अब पैरेलल रेज ऑफ लाइट जिस पे ऑब्जेक्ट से आ रही है, अब वो इस पे ऐसे करके यहाँ पर दे विल फॉल ऑन दिस. ठीक है, अब जब ये इस पे फॉल करेंगी, ठीक है गिरी, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक. अब जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो हम क्या देखते हैं कि दे आर कमिंग, दो दिस इज अ रिफ्लेक्टेड लाइट एंड लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये ऐसे हमें दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है कि ये एक साथ मतलब इकट्ठे होके आ रही हैं. दो दे आर ट्रैवलिंग पैरेलल बट दे आर कमिंग क्लोजर and they are going to meet at a point which is called the focus of the point. Since they are coming together, इकट्ठे हो रही हैं, that's why concave mirrors are called as converging mirrors, क्योंकि ये इकट्ठा हो रही हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद. This जहां पर इकट्ठा होके आ रही हैं, this point is called as focus, and the distance between this focus and the mirror, concave mirror, that is called as focal length. Next is convex mirrors are diverging mirrors. Concave are bent in surface and they are converging. Convex diverging. Convex में क्या हो रहा था? रेज इकट्ठा होके आ रही. Got it? अभी ये कैसे डाइवर्ज हो गया? Spherical mirror इसलिए ऐसा है,
bulging out, इसलिए convex. Got it? Next, parallel beam of light. यहाँ से this red ones. This is the parallel beam of light जो इस convex mirror पे गिरी. ठीक है. अब जब ये पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इस पे गिरी तो इट हैज टू रिफ्लेक्ट बैक. अब जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो हमने क्या देखा कि जब ये रिफ्लेक्ट हुई ये स्कैटर हो गई. क्या हो गई? स्कैटर हो गई, अलग अलग तरफ चली गई. ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई. अब जब ये अलग अलग गई, दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जन. क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्सिफाई, अलग अलग हो गए, स्कैटर्ड हो गए, ये सारी पैरेलल रेज. ठीक है. सो दैट्स व्हाई कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर्स, बिकॉज व्हेन द इंसिडेंट लाइट falls on the convex mirror it diverges. ठीक है. concave में it converges, here it is diverging. but अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या लग रहा है कि ये जो डाइवर्ज रेज है ये एक पॉइंट कहीं पीछे से आ रही है. दे अपीयर टू कम यहाँ से मिरर से थोड़ा पीछे से. तो हमने इनको क्या किया, क्योंकि हमें ऐसा लगा इसलिए हमने इनको ऐसे करके डॉटेड में दिखाया. सो कहां से आ रही है? एंड दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट. मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इस पॉइंट से निकल रही हैं और ऐसे करके और ये ऐसे ऐसे करके इस डायरेक्शन में जा रही हैं. इट अपीयर्स. सो जहां से ये ओरिजिनेट हो रही है दैट पॉइंट वी हैव नेम्ड एज एफ, विच इज द फोकल लेंथ and the distance from the focal length to the mirror, convex mirror, this is called as focal length. ठीक है. कॉन्केव में क्या हो रहा था? कन्वर्ज हो रही थी, इकट्ठा होके आ रही थी. इसमें डाइवर्सिफाई हो रही, बाहर जा रही है, स्कैटर हो रही है. पर हमें अपेयर हो रहा है कि ये मिरर के ना कहीं पीछे से आ रही है. तो जब हमने देखा तो ऐसे लग रहा है ये एक पॉइंट है, दिस इज एफ, और दिस फोकल लेंथ जिसको हम बोलते हैं फोकस, और यहां से हमें ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से निकल रही हैं और फिर आगे जाके ये डाइवर्सिफाई कर रही हैं. इसलिए हमने इसको क्या बोला? फोकस ऑफ दिस this convex mirror. Now, convex concave mirror. I hope you have understood the concept. Now, the images which are formed by the concave mirror. Concave means the converging mirror. Nature and size of the image. Nature से आप क्या समझते हो? Nature means whether the image which will be formed by this concave mirror, whether it will be real image or it will be virtual image. And size of the image, whether it will be erect or it will be inverted. It depends upon the distance of the object from the concave mirror. ऑब्जेक्ट जिसका इमेज चाहिए और जो हमारा concave the converging mirror है, उनके दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है. Now for very distant objects मतलब मिरर जो हमारा कॉन्केव मिरर है उसका और ऑब्जेक्ट जिसका हमें इमेज चाहिए बहुत दूर है. For very distant objects, concave mirror will always produce real and inverted image which is much smaller than the object. Real and inverted. Real क्यों? क्योंकि वो अगर आपको याद, मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें जो फोकस है that was in front, सामने की तरफ था ना, so it was real. जो सामने की तरफ है रियल है और इन्वर्टेड भी आएगा. ठीक है. एंड इट इज मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. बट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट जिसका हमें इमेज चाहिए उसका डिस्टेंस और मिरर का डिस्टेंस हम थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, इट इज रिड्यूस्ड ग्रेजुअली, द इमेज रिमेन्स अगेन रियल एंड इन्वर्टेड. वेरी इंपॉर्टेंट, रियल एंड इन्वर्टेड दूर के लिए. इस बट डिस्टेंस कम हो रहा है तब भी रियल एंड इन्वर्टेड है, बट द साइज इंक्रीजेस. बट जो इमेज का साइज है वो बढ़ जाएगा. पहले क्या था? इट इज मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. अगर बहुत दूर है तो इमेज का साइज जो है, जो ऑब्जेक्ट है उससे बहुत छोटा है. जैसे जैसे हमने डिस्टेंस क्लोज कर दिया, थोड़ा कम कर दिया, बहुत क्लोज नहीं थोड़ा कम कर दिया, तो क्या होगा? जो इमेज है दैट विल बी रियल, दैट विल बी इन्वर्टेड, बट जो साइज है इमेज का जो बहुत छोटा था वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा बढ़ गया. And when the object is very very close, किसके? मिरर के. ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज हो गया, then तब तो जो है जो रियल इमेज थी और इन्वर्टेड थी, रियल जो है वो वर्चुअल बन जाएगी, मींस फोकस पीछे की तरफ चला जाएगा, जो वर्चुअल बन जाएगी एंड इट विल बी इरेक्ट. then the virtual and erect image is formed which is much much bigger than the object.
जो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। और यही जो फिनोमिनन है, यही जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो क्वालिटी है इसकी, वही हम इसके अभी हम नेक्स्ट इसके यूजेस पढ़ेंगे, जो जिसमें सिर्फ यही प्रॉपर्टी जो होती है वो यूज होती है। नाउ यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के क्या यूजेस हैं? अगेन द थर्ड प्रॉपर्टी विच आई टोल्ड यू कि हम वही यूज करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है कॉनकेव मिरर से बहुत कम हो जाता है, तो जो इमेज बनती है दैट इज वर्चुअल, इट इज इरेक्ट एंड इट इज मच बिगर देन व्हाट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज. So the uses, first use is, it is concave mirror is used as a shaving mirror and as a makeup mirror because we need to see the close up of the face. The second use of concave mirror is the dentist's mirror are always concave because he has to see the enlarged view of your teeth. Number third is the torch reflectors. सबके घर में टॉर्च तो होता ही है. देन यू कैन सी दैट द टॉर्च का जो मिरर, अगर आप उसका रिफ्लेक्टर बाहर से उसका जो शीशा है वो हटाएंगे तो आप देखेंगे अंदर से वो इट इज कॉनकेव. अगेन क्यों कॉनकेव होता है? बिकॉज हमें बड़ा इमेज चाहिए. डिश एंटीना, अगेन इट इज इन एवरीबडीज प्लेस. प्लीज जाइए बाहर अपने घर के, देखिए वहां पर जाके कि जो आपका डिश एंटीना का जो सरफेस होता है दैट इज ऑलवेज कॉनकेव. व्हाई इट इज कॉनकेव? सो दैट इट कैन अट्रैक्ट मैक्सिमम ऑफ द सैटेलाइट, जो जितनी भी वो जो रेज रिसीव कर रहा है वो मैक्सिमम रिसीव हो सके. इसलिए नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट द इमेजेस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय the concave mirror, that depends upon the distance between the object and the concave mirror. But in convex mirrors, it is contrary, that whether the object is placed at a larger distance or it is close to the mirror, the convex mirror, image formed will always be virtual, erect and smaller than the object. It is virtual, erect and smaller than the object, and again this property is going to be used in the uses of the convex mirrors. Now comes the uses of the convex mirrors. Convex mirrors के क्या क्या uses हैं? Image कैसे बनती है convex mirror में? It is virtual, it is erect and it does not depend upon the distance, so and the distance of the object from the mirror, and it is always smaller than the object. So it is used as rear view mirrors. जितनी भी हमारी गाड़ियां होती हैं जैसे बाइक, स्कूटर्स, कार्स, इन सब में जो रियर व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर्स होते हैं ना, उसकी तरह हम इस कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं. इसमें इमेज तो छोटी बनती है. व्हाट इज द यूज? बिकॉज हमें उसमें इमेज नहीं देखनी है, हमें उसमें इमेज मतलब इमेज तो देखनी है, बट हमें वी वांट द जो रोड का जो साइड मिरर, जो रोड का साइड व्यू है, दैट हैज टू बी largely seen, large area has to be seen in that small. गाड़ी का तो छोटा सा ही शीशा होगा ना, उस छोटे से मिरर में हमें बहुत सारी चीजें देखनी है. पीछे जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं ऑलमोस्ट जितनी हमें उस छोटे से मिरर में दिख जाए. इसलिए वर्चुअल भी दिखेगी, वर्चुअल इमेज होगी विच विल बी इरेक्ट, सीधा दिखेगा सब कुछ, एंड छोटा 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 सब दिख जाएगा, सो दैट द ड्राइवर कैन हैव द आइडिया कि किस तरीके से गाड़ी उसको साइड में करना है. Second is shop security mirrors. Again, depending upon the same third point, कि अब जैसे जो आपका वो होता है the owner of the shop, he's sitting, वो तो अपने आगे बैठा, उसने देखना है पूरी शॉप में, कई बार शॉप में 3 floors 4 floors, सो उसमें उस छोटे से मिरर में उसने हर जगह वहां पे जो मिरर्स हैं वो लगा रखे हैं. अब वो मिरर्स क्या इसी प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं कि उस व्यू में बड़े सारे हम कस्टमर्स को देख सकें, सो दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट, जो थेफ्ट का पॉसिबिलिटी है वो reduce. This was all about the convex and the concave mirrors. So we are left with the spherical lenses and the dispersion of the light that I will be covering in my next video. I hope students I was able to clear the concepts of the light of this chapter till now, and if you are able to understand what I am teaching, so please, if you are liking this channel, please like the video.